Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. This time, we would like to talk about something which is very, very important for our children who would be in class 10th next year or afterwards, because CBSE has come up with some draft policy for conducting examination of class 10th twice in a year from 26 onwards. You all know it very well that as per NEP 2020, they are trying to reduce the stress of examination, particularly on children. Now, when it comes to classes 10th and 12th, I mean, every state board, every year, as I told before also when I was talking to you, how to face examination with confidence, there also because it comes with some stress. So the idea given in NEP was that if we offer children another opportunity to really making their performance better, it will reduce that stress what the child has during the year, that whether he or she would be able to do better or would get good marks or not get good marks. So they have now, if they are by chance for some reason are not able to do well in first attempt to what they should have done, they have got another opportunity if that is offered to them. And keeping that in mind, CBSE has come up as per NEP 2020 with this draft policy, which is there on their website, and they have sought views of the parents, of the teachers and other stakeholders, so that we can have some foolproof examination system which can of course make our children learn better and test the holistic development the child is having during the course of the year, and that which can be reflected in the report card or passing certificate of that child, and which gives a complete picture of child being a great resource for the betterment of society. So, keeping that in mind, of course, I had my own views about it, but after going through the draft policy, I am of the opinion that it has major positives in that. There can be some logistic problems, how to conduct it, because the number of days in a year remain the same. It does not change. So those number of days which are there, 365 days, number of holidays to be left, and the syllabus or the curriculum which we have for class 10th, will that be changed or will that remain the same? I mean, this all will have to be seen how the CBSE is coming up. But when it comes to the draft proposal for conducting examination of class 10th in two phases, first phase and second phase. As on today, this is single examination, and then we have compartment examination in the month of July. If somebody wants to improve or somebody would have not performed very well in one or two subjects, because in class 10th they allow supplementary or compartment examination in two subjects. So, before really we talk little about what are the positives of this proposal and what may be some challenges, I would like to share with you all some statistics. This year, class 10th examinations are being conducted from 15th of February to 18th of March. And if you count the number of days, it comes out to be 32. Next year, that is in 2026, they are proposing the two phases. The first phase, they say, is from 17th of February to 6th of March. Now, when I say 17th of February to 6th of March, that does not mean it is going to be like this only. What they have done is that the first phase would start in the month of February for sure, as we have the normal examination this year also. But the first examination would be conducted on first Tuesday after 15th of February. So as next year, 17th February is coming out to be the Tuesday, hence they have proposed that date sheet based on that. So 17th of February to 6th of March, the first phase. And number of days, if you count, it comes out to be 18 days in the first phase. Second phase is 5th of May to 20th of May. That number comes out to be 16. So total number of days, if we add for first phase as well as for second phase, that comes out to be 34 days. So as on today, this year, we are spending around 32 days, like from 15th of February to 18th of March. Whereas next year and year after that, it would be around 34, 35, 33, depending upon how the days are fixed for the examination. So the number of days are not increasing that much as we felt initially. Number of children who are registered this year are around 24 lakhs, whereas next year they are expecting it to be around 26.5 lakhs.
Number of answer sheets which they are expecting to be evaluated by the evaluators this year is around 1 crore 57 lakhs, whereas next year they are expecting it to be around 1 crore 73 lakhs, which comes out to be around 16 lakhs more than this year. Now here also you will all realize the number of answer sheets to be evaluated by the teachers is not increasing manifold. It is increasing just by 16 lakhs. Despite the fact the number of children who would be appearing in class 10th examination has also increased by 2 lakhs, which I mentioned to you just a little before. So when it comes to the number of days spent, that doesn't increase too much. When it comes to the number of answer sheets to be evaluated, it also does not increase too much. तो अब फिर कभी किसी ने मेरे सवाल पूछा कि सब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे होगा। देखिए अगले साल से ये अपने 3 ग्रुप में सब्जेक्ट्स को डालेंगे। अब एक जो फर्स्ट ग्रुप तो उन्होंने बता दिया मेन सब्जेक्ट्स का, उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनको मान लिया 5 सब्जेक्ट्स को। दूसरे ग्रुप में इन्होंने डाला रीजनल लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस को, जिसमें आपका उर्दू है, संस्कृत है, फ्रेंच है, जर्मन है, इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। और तीसरा इन्होंने डाला जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं। रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में बुक कीपिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अकाउंटिंग वाला कोई पोर्शन हो सकता है, म्यूजिक, डांस, इन सबको इन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। सो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे ये लोग, नंबर ऑफ जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हुए उनके फिक्स डेज आपको 5 दे देंगे। 5 दिन कोई भी आप देख सकते हैं, जो इन्होंने ड्राफ्ट डेट शीट दी है 26 के लिए। जो सेकंड ग्रुप है, जो रीजनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेजेस का ग्रुप है, उसको ये एक दिन में फिक्स करेंगे, किसी भी एक दिन में एग्जामिनेशन होगा। और जो आपके रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा संख्या में सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो उनको 2 या 3 दिन में ये बांट देंगे। इस तरह का इन्होंने प्रपोज किया है। तो वो आप चाहे तो ये जो सीबीएसई ने ड्राफ्ट डेट शीट दी है उसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब आप देखिए कि जो इन्होंने जो ड्राफ्ट पॉलिसी में दिया है, मैं आपको जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ यू शेयरिंग इट विद यू, जैसे मान लीजिए जो अभी बच्चे 9th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगले साल वो 10th में आएंगे, इनकी एलओसी तैयार हो जाएगी बाई सितंबर 25। और जब वो एलओसी तैयार हो रही होगी, उसी वक्त में बच्चों को ऑप्ट करना पड़ेगा, वुड दे लाइक टू अपीयर इन फेज 1 एंड फेज 2 बोथ, और दे वुड लाइक टू अपीयर ओनली इन फेज 1 और इन फेज 2। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे वुड कम टू नो। अब इसमें एक सवाल ये आया था कि एक बार को तो सभी बच्चे चाहेंगे कि हम, क्योंकि किसी बच्चे को क्या पता कि मैं जब फरवरी में फर्स्ट फेज में अपीयर होऊंगा तो उस वक्त मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, वुड आई बी एबल टू डू वेरी वेल और आई वुड नॉट बी एबल टू डू वेरी वेल, तो हाउ वुड आई बी एबल टू, सो मे बी लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड ऑप्ट फॉर बोथ द फेजेस। लेकिन ये इन्होंने जरूर कहा है कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट फेज के लिए ही रजिस्टर किया अपने आप को, तो आप फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज के लिए अपने आप को नहीं जोड़ सकते। ये थोड़ा ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। प्रपोजल के अनुसार आप चाहते हैं, अगर आप तो सजेस्ट करें सीबीएसई को कि मैं चाहूं तो मैं जोड़ लूं, लेकिन चूंकि मैंने देखा जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ फर्स्ट फेज वुड बी डिक्लेयर्ड बाय 28 अप्रैल। और वो रिजल्ट भी किस तरह डिक्लेयर करेंगे, ये आपको कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपके डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट डाल देंगे। और 20 के बाद में ये लोग फिर 5 या 6 दिन देंगे, और जिसमें कि आपको अब ये सोचना है कि आर यू गोइंग टू अपीयर इन द सेकंड फेज और यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन द सेकंड फेज। आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, आप चाहो तो सेकंड फेज से आपका मन नहीं है, आपका परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं, आपने जो फर्स्ट फेज में आपका परफॉर्मेंस रहा है वो आपने अच्छा दिया है बच्चे का, तो वो उससे ऑप्ट आउट कर सकता है। और जो रिमेनिंग बच्चे होंगे उनका वो वापस एक एलओसी दे करके, आपको फ्रेश एलओसी स्कूल्स को दे करके, और वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे। यहां पर ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ फेज 1 के लिए अप्लाई किया था और अब आपकी इच्छा हो रही है मैं फेज 2 दे, वो नहीं वो अलाउ करेंगे। सिमिलरली जब एक बार एलओसी में आपने कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिए, वो आप फर्स्ट फेज में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपीयर करना पड़ेगा। हां, सेकंड फेज में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन डालिए, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट चेंज करना है सेकंड फेज में, तो आप फर्स्ट फेज में उस सब्जेक्ट में अपीयर मत होइए, उसको मिस कर दीजिए। अगर आप उस सब्जेक्ट में अपीयर हो गए फर्स्ट फेज में, तो आप फिर सेकंड फेज में सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। ये भी एक प्रपोजल है।
जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट फेज के बाद में कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे, डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उस रिजल्ट के आधार पे आप क्लास 11th में प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल्स कैन स्टार्ट क्लास 11th, प्रोविजनल एडमिशन देकर के क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो मार्कशीट आपकी या जो आपको दी जाएगी, दैट वुड बी आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, जिसका रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड बाय 30th of June। 30 जून तक उसका रिजल्ट आ जाएगा और जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसके अंदर दोनों फेज के एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे और जो जिसमें आपके बेटर मार्क्स आए वो भी रिफ्लेक्ट होंगे वहां पर। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनल मार्क्स, जो प्रोजेक्ट के नंबर हैं या इंटरनल मार्क्स जो आउट ऑफ 20 स्कूल्स अपलोड करते हैं, वो मार्क्स एक ही होंगे, वो दो बार नहीं होंगे। वो एक बार गए, वो दोनों, चाहे आपने फेज 1 और फेज 2 दोनों दिए हैं या फेज 1 दिया है और फेज 1 नहीं दिया है, फेज 2 दिया है। अब देखिए, जिसने फेज 1 दिया उसने तो उसके मार्क्स अगर कहीं कम भी आए, फेज 2 अगर दिया है तो उसमें बेटर हो सकते हैं उसके मार्क्स, और नहीं भी हुए तो अगर फेज 1 के पहले अच्छे थे तो वो आपके कंसिडर होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फेज 1 नहीं दिया, सिर्फ फेज 2 दिया, तो अब आपको इंप्रूवमेंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि नेक्स्ट ईयर का जो फेज 1 होगा आपको उसमें अपीयर होने का ये मौका देंगे। बट मौका दे तो देंगे, लेकिन सिलेबस वही होगा, करिकुलम वही होगा जो उस साल के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 25-26 में जून 26 में दिया सेकंड फेज और फिर 27 में फर्स्ट फेज देना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो 25-26 के सिलेबस के आधार पर ही देना है। वो नहीं होगा। आपको सिलेबस जो दिया जाएगा वो 26-27 में जो सिलेबस था उसके आधार पर आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये ड्राफ्ट दिए हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, हमारे पेरेंट्स को भी समझने पड़ेंगे, हमारे स्कूल्स को भी समझने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को भी समझने पड़ेंगे और एक डिसीजन उसके आधार पर लेना पड़ेगा। वंस सीबीएसई फाइनलाइजेस दिस पॉलिसी, it will come to us at the earliest possible once this deadline date of 9th of March till the time we all can offer our suggestions and views to CBSE. Based on that, they will make some changes, amendment, and will come up with this. एक पॉइंट और जो बड़ा इंपॉर्टेंट इस ड्राफ्ट पॉलिसी में है वो है जो अभी वेरिफिकेशन या रीइवैल्यूएशन का एक मकसद है। फोटोकॉपी हम बच्चे मांगते हैं, ये अभी तक इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा है कि इसके बारे में हम लोग इसको रिव्यू करेंगे एंड विल कम अप विद सम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो। क्योंकि नंबर पहले वाले में अलाउ करेंगे नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो है, आप देखिए 20 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, 5 मई से आप दूसरा एग्जामिनेशन शुरू करते हैं, तो इतने दिन में ये सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सब चीजें समझने के बाद में जब हमें ये थोड़ा आइडिया लग गया कि सीबीएसई इस तरह से प्रपोज कर रही है, अब इसकी थोड़ी मेरिट्स या वो एरियाज जो कि थोड़ा कंसर्न के हो सकते हैं हम सब लोगों, वो हम समझने की कोशिश करें। जहां तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मैंने पेरेंट्स से और टीचर्स से बात की, मेरे से एक सवाल किसी ने पूछा कि देखिए एनटीए जेई का एग्जामिनेशन 2 बार करता है, एक फर्स्ट फेज होता है जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, और एक सेकंड फेज आएगा वो अप्रैल के आसपास। सो हैज इट रिड्यूस्ड द प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन? एंड देयर मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस। एक जगह तो मेरे सामने ये भी बात आई है कि जिन बच्चों का 95-96 परसेंटाइल भी आया है, फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ गया 95-96 का है, दे आर स्टिल ट्राइंग टू अपीयर इन द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, और उनके पीछे ये है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन who have done even that better, getting 95-96 percentile, are still trying to appear in the second phase. They are not really getting away from that. So, तो ये स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही बार ठीक था कि हमने वो एक एग्जाम दे दिया, एक रिजल्ट आ गया, बेस्ड ऑन दैट वी आर क्लियर वेदर वी आर गेटिंग इनटू और वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट। नाउ देयर आर 3 months more for which we have to take additional stress to appear in the second phase and then wait for the result to be declared and then appear in the advance. तो वो कह रहे हैं कि एक जेई के आधार पर एडमिशन टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आई मीन दिस हैज बिकम फ्रॉम जनवरी टू लाइक May or like June. So 6 months, I mean, has it reduced or it has increased the stress? So this is a question to be asked by everyone, and an honest answer is to be sought before we finally come to this conclusion that having 2 examinations in class 10th would reduce the stress on children.
So that is one point of view of many people. And the second is many people are very excited that children will have a confidence that if they are unable to do well in the first phase, they have an option for doing it the second phase. And also because the children have some, because when we consider that the first phase would get over by 6th of March, most of the children would come to know how have they performed. So if they think that they would have to appear in the second phase, so they have enough time to revise the syllabus, so they would understand the concepts and the subjects much better than what they would have done in case this was only one examination. So there is a possibility that stress will go down. There is a possibility that children would understand the concepts and the subjects better when they are appearing twice. And most of the people are giving example of SAT, etc. SAT, जिसमें वो कहते हैं कि भाई उनमें भी तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स का ऑप्शन दिया जाता है टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, एंड दैट मेक्स अ सेंस टू मी. सो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. और जहां तक अब कुछ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, क्योंकि अभी ही बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो 10th पढ़ा रहे होते हैं, वो टीचर्स 9th भी पढ़ा रहे होते हैं, और हो सकता है उसमें कुछ 8th क्लास भी पढ़ा रहे होते. तो अगर इतनी बार टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे 2 बार आंसर शीट चेक करने में, तो डेफिनेटली ये उनकी कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा सा उनकी जो क्लासरूम टीचिंग है, क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, उन पे थोड़ा सा फर्क डालेगा. दूसरा, ये बच्चों को अलाउ तो कर रहे हैं क्लास 11th को शुरू करने के बाद में आफ्टर फर्स्ट फेज, बट सी दो चिल्ड्रन हु आर ट्राइंग टू अपीयर इन द सेकेंड फेज, इफ द नंबर इज वेरी लार्ज, then it would become a futile exercise to having class 11th also. बिकॉज जब बच्चा क्लास 10th के सेकेंड अटेम्प्ट को ले रहा होगा, तो वो शायद क्लास 11th को उतना महत्व उस दौरान में ना दे. एक ये थोड़ा सा कंसर्न बहुत सारे लोगों का है. तीसरा कंसर्न जो मतलब वो सभी के लिए है, वो बच्चों के लिए भी है, वो टीचर्स के लिए भी है, वो स्कूल्स के लिए भी है. अब इसमें यह भी कहा गया है पॉलिसी में कि जो स्कूल आपका फर्स्ट फेज में सेंटर होगा, वही सेंटर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फेज में भी होगा. तो मतलब उस स्कूल को आज भी अगर आप देखें, अब जो एग्जामिनेशन ऑन है, जो जो स्कूल सेंटर्स हैं, वो अपने एग्जामिनेशन उनको उस तरह से शेड्यूल करने पड़ रहे हैं, जबकि बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है. और जब आप मई में एग्जाम करेंगे, 5th मई टू 20th में एग्जामिनेशन करेंगे, और चूंकि हमारे यहाँ तो 15 मई तक तो सब स्कूल चलते ही हैं, 15th मई तक तो स्कूल ऑन होते ही हैं. अगर वो स्कूल चला रहे हैं उस दौरान में, तो उनको फिर तकलीफ आएगी, बिकॉज दे कैन नॉट रन स्कूल ऑन द डे व्हेन देयर इज बोर्ड एग्जामिनेशन. तो अगर जो सीबीएसई के नंबर ऑफ आंसर शीट्स का जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताया है कि सिर्फ 16 लाख से बच्चे बढ़ रहे हैं, सो प्रोबेबली दे आर एक्सपेक्टिंग लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी अपीयरिंग इन द सेकंड फेज. अगर ऐसा होता है, तब तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल किसी को भी नहीं होनी चाहिए, इवन लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. बट इफ दिस नंबर इन सेकंड फेज ऑल्सो कम्स आउट टू बी वेरी लार्ज. अब आप देखिए कि जेई का जैसे हम बात करते हैं, 12-13 लाख बच्चे फर्स्ट फेज में अपीयर होते हैं, और ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वी सी इन द सेकंड फेज ऑल्सो. अगर ऐसा हो गया तो थोड़ी मतलब मुश्किल आ सकती है. बट यस, वी हैव टू टेक सम स्टेप फॉरवर्ड टू मेकिंग चिल्ड्रंस लाइफ लिटिल इजियर देन व्हाट इट वुड बी. बट ये जरूर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी बोर्ड को भी बहुत सिंसियरली इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज विच आर स्पेंट फॉर द इंस्ट्रक्शन देयर इन द क्लासरूम, फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, दैट शुड नॉट गेट कंप्रोमाइज्ड जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द चिल्ड्रन. मतलब वो पढ़ाई की जो क्वालिटी है, जो लर्निंग की क्वालिटी है, वो नहीं मतलब कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए. बिकॉज फॉर मी एंड फॉर मेनी पीपल, learning is more important than examination. I'm not saying examination is not important, but learning जो है, सीखना जो है, वो बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस बात पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो मैंने आपसे बहुत ब्रीफ में ड्राफ्ट पॉलिसी डिस्कस की है. मैंने आपको अपने विचार जो मैंने लोगों से भी, मैंने अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, मैंने बच्चों से भी बात करने की कोशिश की है. जो मुझे मोटा मोटा सब लोगों से इनपुट मिला, और मेरा अपनी खुद की जो सोच है, जो मैं समझता हूं, वो सब आपसे शेयर की है. और अब मैं आप लोगों से चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास में 2-3 दिन बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, आपके पास 2-3 दिन होंगे. आप अपने विचार जरूर सीबीएसई को दीजिएगा, और आप मान के चले सीबीएसई
सबके विचारों पर ध्यान देगी, और अगर कोई बच्चों के फायदे के लिए महत्वपूर्ण होगा कोई भी विचार तो वो उनको जरूर लेंगे। आप ये सोचेंगे मेरी बात को कौन मानेगा, मेरे कहने से का, ऐसे नहीं होगा। हम सब अपने अपने विचार रखेंगे, अपने व्यूज शेयर करेंगे सीबीएसई के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। आई थिंक वी वुड बी डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू आवर चिल्ड्रन एंड ए ग्रेट सर्विस टू आवर एजुकेशन सिस्टम एंड द कंट्री। मैं इसी अपेक्षा के साथ कि आप लोग शेयर करेंगे अगले 2-3 दिन में अपने विचार सीबीएसई साइट पर या सीबीएसई को मेल करेंगे और अपना योगदान देंगे चीजों को बेहतर बनाने में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।